شخص کے لیے تو فرض نہیں ہے، فرض کفایہ ہوتا ہی وہ ہے جو سب کے لیے لازم نہ ہو، لیکن ہر دور میں، ہر علاقے سے، ہر دیہات، ہر قریہ، بستی، شہر، ملک سے کچھ لوگ ایسے ہونے چاہیے جو اس علم میں مہارت حاصل کریں اور پھر آگے دوسرے لوگوں کو سکھلائیں۔ اور جو عام لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کے لیے اتنے قواعد کا سیکھنا یہ ضروری ہے جن قواعد کی روشنی میں وہ قرآن کو اس انداز سے پڑھیں کہ وہ لہنے جلی سے بچ سکیں کم از کم۔ تو جو شخص اس کی تعلیم دینا چاہتا ہے یا دے رہا ہے، اس کے لیے تو لازمی ہے کہ وہ ان قواعد میں اچھی طرح مہارت رکھتا ہو۔ قواعد تجوید ہو، اور اوقاف کی جو اقسام ہیں، کیفیت وقف کے اعتبار سے اور محل وقف کے اعتبار سے کم کم یہ، اور اس کے علاوہ بھی وقف کی اور بھی اقسام ہیں، اور اس طرح اس کو کچھ نہ کچھ رسم کے حوالے سے بھی علم ہونا چاہیے، کون سے کلمات کہاں کیسے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ تو اب جن لوگوں کو آگے تعلیم دینی ہوتی ہے وہ عموماً تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں جو ابتدائی ابھی بچے ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہوتا ہے، ان کی ادائیگی کچھ تو ٹھیک ہوتی ہے اور کچھ اس میں کمیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بڑی عمر کے ہوتے ہیں، قرآن جو ہے انہوں نے پڑھ لیا جیسے کیسے بھی، اب پڑھتے پڑھتے ان کی زبان جو ہے وہ اب بعض غلطیوں کے اوپر جو ہے وہ پختہ ہو چکی ہوتی ہے، یا ان کی زبان پہ وہ غلطیاں پختہ ہو چکی ہوتی ہیں، ان کے لیے ان کو ٹھیک کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو ان تین کیٹیگری کے لوگوں کو یہ تجوید کے قواعد پڑھانے اور عملی تجوید یعنی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھانے میں طریقے جو ہیں وہ مختلف ہوں گے، سب کو ایک ہی طریقے سے نہیں پڑھا سکتے ہیں۔ جو ابتدائی بچے ہیں جنہوں نے ابھی قرآن مجید شروع کرنا ہے یا کوئی قاعدہ جو ہے وہ ابھی شروع کرنا ہے، تو ان کو ایک پڑھانے کا طریقہ ہے۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم پہلے بچوں کو غلط پڑھاتے ہیں خود ہی، اور بعد میں پھر اس کو ٹھیک کرانے بیٹھ جاتے ہیں۔ غلط پڑھ پڑھ کے وہ پختہ ہو چکے ہوتے ہیں، اور بعد میں پھر ہم اس کو ٹھیک کرانے پہ لگ جاتے ہیں۔ اب وہ ٹھیک کرانے والا، صحیح کرنے والا بھی پریشان ہے، اور جس بچے نے جس کو ٹھیک کرایا جا رہا ہے وہ بھی پریشان ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا ہے، پہلے ہم نے جیسے پڑھا تھا تو وہ کیا ہم نے غلط پڑھا تھا۔ تو اگر ابتدا ہی سے اس چیز کا لحاظ رکھا جائے تو میرا خیال نہیں ہے کہ اس کو بعد میں باقاعدہ تجوید کا کورس کروانے کی ضرورت ہوگی۔ مثلا قاعدہ کوئی بھی ہو، آج کل تو قاعدے بھی بے شمار ہیں نا، کوئی تجویدی قاعدہ ہے، کوئی نورانی قاعدہ ہے، کوئی اقرا قاعدہ ہے، جو بھی ہو، قاعدہ ایک ہی ہوتا ہے۔ جتنا بھی اچھا ہو، جتنے بھی اس کے ساتھ قاعدے لکھ دیے جائیں، تجوید کے قواعد ساتھ ہر تختی کے ساتھ لکھ دیے جائیں، یا اس کے ساتھ قواعد نہ لکھے ہوں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے پڑھانے والے سے کہ پڑھانے والا کیسا ہے۔ پہلی تختی ہوتی ہے مفردات کی، حروف تہجی یا حروف ہجا اس کو کہہ دیتے ہیں، الف سے لے کر یا تک۔ اب اس کو پڑھانے کا ایک انداز ہے، اس کے ساتھ باقاعدہ لکھا ہوتا ہے کہ ایسے ہی پڑھانا ہے، لیکن اس کی طرف ہم توجہ نہیں کرتے اور سیدھا سیدھا ان کو بچوں کو پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، الف با تا تا جیم،
बस। अब बच्चे को 2 हरफ दे दिए हैं, वो सारा दिन जो है वो अलिफ बा ता सा जैसे उसकी जबान से निकल रहा है वो पढ़े जा रहा है। हालांकि उस बच्चे को कुछ पता नहीं है कि ये अलिफ जो है इसकी आवाज कैसी है, और बा जो लिखा है उसके सामने उसकी आवाज बा है या ता है। जीम की आवाज हा निकालनी है या खा निकालनी है हमें नहीं बताना है। जब उसको ये बता दिया है कि इसकी आवाज बा है, बा मुवहिदा जिसको कहते हैं, बा मुवहिदा यानी एक नुक्ते वाली बा, और सा मुसल्लिसा यानी 3 नुक्ते जिसके ऊपर होते हैं, क्योंकि शुरू में कुरान जब नाज़िल हुआ तो ये नुक्ते वगैरह नहीं थे ना, ये हज्जाज बिन यूसुफ के ज़माने में लगाया गया है। तो बा ता सा ये नुक्ते और बगैर नुक्ते वाले हरफों के दरमियान फ़र्क कैसे करते थे, तो बा को कहा जाता था बा मुवहिदा, और सा के 3 नुक्ते उसको बोलते हैं सा मुसल्लिसा, और ता के 2 नुक्ते हैं तो उसको कहते हैं ता फौकिया, और या के 2 नुक्ते वो नीचे हैं तो या तहतिया, और जिसका नुक्ता नहीं होता उसको कहते मुहमला, और जिसका नुक्ता होता है उसको कहते हैं मुअजमा। अब बच्चे को जब हम पढ़ाने लगे हैं तो उसको बताएंगे ये बा है, उसके बाद आ रही है ता। अब बच्चे को नहीं पता कि ये ता है और ये बा है, हमने उसको बताना है कि इसकी आवाज ता निकालनी है, तो उसको उसी वक्त ही पढ़ाते वक्त ही उसकी आवाज बारीक बताई जाए उसको ता, क्योंकि आगे तो आ रही है। अब जब बच्चे को पता ही नहीं था तो आपने आपने बताया तो उसको पता चला कि ये ता है, तो आप ता की आवाज उसको सुनाते वक्त ही उसी तरह की आवाज सुनाए उसको जिस तरह उस हरफ ने पढ़ा जाना है, तो बच्चा पहले दिन से उसी तरह ही उसकी अदायगी करेगा। और साथ ही उसको पढ़ाते वक्त कि उसको खींचना कितना है, जब उसके ऊपर हरकत है या नहीं है, या हरकत तो है लेकिन उसके साथ हरफे मद्दा नहीं लगा हुआ, तो अब उस हरफे मद्दा जिसके साथ नहीं लगा हुआ उसकी आवाज कितनी सी निकालनी है उसको उतना ही नहीं पढ़ाया जाए। मतलब जब हरकत वाली तख्ती पे पहुंच जाते हैं, हरकत वाली तख्ती से पहले तमाम हरूफ को उसी अंदाज से ही उसको पढ़ाया जाए कि जो मोटे हरफ हैं उनकी आवाज उनको पहले दिन से ही मोटी बताई जाए। छोटे बच्चे को अगर आप कहेंगे ना कैसे आवाज मुंह भर के आवाज निकालो तो वो निकाल देगा, और जो हर बारीक है उन हरफों को बारीक ही कहा जाए। तो ये जो इब्तदाई चीजें होती हैं वो हर तख्ती के साथ साथ ही उसको अगर बता दी जाए तो वो बच्चा उसी के मुताबिक ही पढ़ेगा, अगरचे 1-2 दिन ज्यादा लग जाए, वक्त उतना ही लगेगा। अगर एक दफा वैसे उसको पढ़ा दें और फिर जल्दी पढ़ लेगा वो बच्चा, फिर उसको ठीक कराने पे फिर कुछ दिन लगेंगे और फिर मुश्किल भी पेश आएगी। तो इसलिए इस मुश्किल से बचने के लिए हर तख्ती को पढ़ाते वक्त उसके अंदर जो कवायद हैं उसको मलहूज़ खातर रखा जाए कि इब्तदा से ही हरूफ की अदायगी उसी तरह ही करवाई जाए जिस तरह वो हरूफ अदा होते हैं। इसी तरह ही फिर हरकत जो होती है, हरकत की अदायगी में भी गलती होती है, पहले उसको जो उल्टा सीधे जो है वो पढ़ा देते हैं, या फिर हरकत पढ़ाते वक्त ये नहीं बताते कि इसके साथ हरफ मद्दा लगे हों। अगर हरफ मद्दा नहीं लगे हैं तो कैसे पढ़ना है, और नहीं लगे हैं तो कैसे पढ़ना है। अब बच्चे को तो नहीं पता होगा कि हरफ मद्दा क्या होते हैं, पढ़ाते वक्त तो उसको आवाज ही उतनी बताई जाए कि बा जबर बा, ता जबर ता। अगर आप उसको पढ़ाएं बा जबर बा, खुद ही खींच दिया या गलती से उसने खींच दिया, उसको रोका नहीं है, तो उसी तरह पक्का कर लेगा। अब वो जब पढ़ेगा तो इस तरह की गलतियां जो है वो बेजा करता जाएगा। तो बा जबर बा, ता जबर ता, सा जबर सा, बा जेर बी, ता जेर ती, बा पेश बू। अगर थोड़ा सा लंबा कर दिया बा पेश बू तो ये गलत हो जाएगा ना। वो फिर देखेगा जहां कहीं पेश आ रही है ना उसको खींच के ही पड़ेगा, तो फिर वो ज्यादती हो जाएगी हल्कों में। इस तरह जो है ये बच्चों को इब्तदाई से इसी तरह पढ़ाया जाना चाहिए जिस तरह क़वाइद तजवीज़ के मुताबिक पढ़ाया जाता है, और फिर उसको एक एक कायदा एक एक चीज साथ जो है वो बताते जाए।
एकदम सारी चीजें याद नहीं करवानी है। मोटे हरफों का बता दिया गया है कि ये मोटे हरफ हैं। पहली तख्ती में इतना ही बता दिया जाए कि ये मोटे हरफ हैं और ये इनकी आवाज मोटी लगती है। अगर वहां पे ये बता दिया जाए कि यहाँ पे ये हरफ, पढ़ाने में तो ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन एकदम सारी चीजें नहीं बतानी है। इब्तदा में मोटे हरफ वो बताए जाए, बाद में फिर सीटी वाले जो हरफ हैं उनकी वो बता दिया कि यहाँ पे इन हरफों को सीटी के साथ पढ़ना है। अब हुर्फ कलकला वहां से छोड़ दिया जाए क्योंकि वहां पे कलकला का ताल्लुक नहीं है। तो कलकला जो है वो आगे जब हरफ साकिन आएंगे तो वहां पे जाके बताया जाए कि इन हरफों को कलकला के साथ पढ़ना है। तो इसी तरह ही हर तख्ती के कवायद के मुताबिक उसको जो है वो पढ़ाया जाए। तो जब वो एक कायदा जो है इब्तदाई सही तजवीज़ के मुताबिक पढ़ लेगा तो कुरान मजीद जब पढ़ना शुरू करेगा ना तो वो नादा तो खुद ब खुद ही पढ़ना शुरू कर देगा और काफ़ी सारी तजवीज़ की गलतियां जो है वो इब्तदा से ही ठीक हो चुकी होंगी। अब इसी तरह जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं, अब वो नादरा तो पढ़ चुके हैं, कायदा तो उन्होंने पढ़ लिया है, अब उनका क्या किया जाए, उनको कैसे पढ़ाना है, कहाँ से शुरू, समझ नहीं आ रही होती कि इनको कहाँ से ठीक कराना शुरू करें और क्या छोड़ें और क्या ना छोड़ें। तो ऐसे लोगों के लिए ये करना चाहिए कि पहले गौर करें कि वो ज्यादा गलतियां किस चीज में कर रहे हैं। आम तौर पर ये होता है कि वो सबसे ज्यादा जो गलतियां होती हैं वो हरकत में कर रहे होते हैं, क्योंकि बड़ी उम्र के लोग जो होते हैं ना वो हरकत में हरकत को मजहूल पढ़ते हैं। तो सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि उनकी ये हरकत जो है वो ठीक की जानी चाहिए बस, और किसी चीज में उनको ना उलझाया जाए। उनको साथ ही अगर आप मोटे हरफों का भी बता दें, हरूफ कलकला भी बता दें, गुन्ना भी बता दें, मद भी बता दें उनको, तो वो तो कुछ भी नहीं सीख सकेंगे। तो इसलिए सबसे पहले उनको हरकत जो होती है उनकी अदायगी जो है वो ठीक करवाई जाए बस। चाहे कोई कायदा लेकर वहां से सिर्फ और सिर्फ हरकत ठीक करवा दी जाए तो काफ़ी सारे अल्फाज उनके सीधे हो जाएंगे, क्योंकि पहले अल्फाज को हमने सीधा करना है। जब अल्फाज ही सीधे नहीं है कि अल्हम्दु की बजाय अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ रहे हैं, देहातों में होते हैं ना, तो जो है वो ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं, वो उनको पढ़ाई भी ऐसे क्या होता है ना। पहले दौर में जो है वो बाद वो कुर्रा भी इतने ज़्यादा नहीं होते थे, तो मस्जिद में गया इमाम, मस्जिद ने जो है उनको जैसे सबक दे दिया, या जो है वो ख्वातीन जो है वो घरों में पढ़ाती पढ़ाती थी, और ख्वातीन के पढ़ने का अपना भी अंदाज ऐसा ही होता था। आजकल तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़ी जो है फ़र्क पड़ गया है। ख्वातीन जो है बहुत अच्छा कुरान पढ़ने लगी हैं, बाद में कुरान सुनते हैं तो बहुत खुशी होती है। तो ये दो तीन इदारे मारूफ जो हैं, अलहुदा है माशाल्लाह, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं, वहाँ से तालबात आती हैं पढ़ के, बहुत अच्छा पढ़ा होता है। इस तरह ये हमारा कुलियतुल कुरान है, इसमें बहुत सी क्लासेस चल रही हैं, और इसी तरह ही कुलियतुल कुरान ये फूलनगर में कारी साहेब अहमद मीर मोहम्मदी जो है उन्होंने भी शुरू किया हुआ है ये सिलसिला ख्वातीन का पढ़ाने का। तो अल्हम्दुलिल्लाह आजकल जो है ख्वातीन में बड़ा ये ज़ौक भी है अच्छा पढ़ने का, और बहुत अच्छा पढ़ती भी है। लेकिन जो पहले लोग अब पढ़ चुके हैं या अब भी अच्छा पढ़ने वालों तक उनकी रसाई नहीं है, और जब फिर उनकी रसाई हो जाए उन तक तो फिर उनका क्या किया जाए, तो फिर मतलब ये है कि उनकी पहले जो हरकत हैं ज़बर ज़ेर पहले वो ठीक करवाई जाए, क्योंकि ज़बर ज़ेर से पेश को सही अदा ना करने से काफ़ी सारी गलतियां जो है ना वो हो रही होती हैं। और जब हरकत ठीक हो जाएंगी तो काफ़ी सारी गलतियां खुद ब खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हरकत की अदायगी ठीक करवाने के बाद फिर हरफ मद्दा जो है वो उनको बताए जाने चाहिए कि ये हरूफ मद्दा है, इनको खींचना है। कब खींचना है, क्योंकि हरकत को आम तौर पर वो खींच देते होते हैं ना, एक तो है मजहूल पढ़ना और एक है बिला वजह खींचना। तो पहले जो है वो मजहूल को मारूफ किया जाना चाहिए ताकि हरकत ठीक हो। ठीक होने के बाद फिर उनको बताया जाए कि इनको खींचना कब है, कि ये तीन हरफ है, जब पेश के बाद ये वाली वाओ जज़म वाली आए तब आप इसको थोड़ा सा खींचे, वरना इसको नहीं खींचे। जबर वाले हरफ के बाद अलीफ आए तब आप इसको थोड़ा सा
लंबा करें और इतना सा लंबा करें बस। अगर ये नहीं है तो बिल्कुल इसको नहीं खींचें। तो हरकत ही करने के बाद हरफ मद्दा जब उनकी भी पहचान हो जाएगी कि हरकत को कहाँ खींचना है और कहाँ नहीं खींचना है, तो काफ़ी सारे अल्फाज उनके सीधे हो जाएंगे और काफ़ी सारी मुश्किल जो है वो हल हो जाएगी। फिर उसके बाद उनको मोटे हरूफ जो है उनकी मशक करवाई जाए कि ये हरफ जो है ये मोटा है और ये बारीक है, ताकि लहने जली से बचा जा सके, क्योंकि हरकत को मजहूल पढ़ना ये भी लहने जली है। और ज्यादती कर देना कुरान में किसी हरफ की, ये भी लहने जली है। आपको पता, किसी हरफ को बढ़ा देना तो हरकत को खींचने से ही जाती होती है, वैसे जाती होती नहीं है आपको पता। जबर वाले हरफ को खींच दिया है, अलीफ ज्यादा हो गया, या जेर वाले हर्फ को या जेर को खींच दिया तो उसमें या पैदा हो जाएगी, और इस तरह पेश है। तो ये लहने जली जाए इस तरह जो है वो ठीक हो जाएगी। और उसके बाद मोटे जो हर्फ हैं, आस्ता आस्ता जब इनकी मशक पूरी हो जाए, उनको भी थोड़ा सी तसल्ली हो जाए कि हम कुछ कुरान जो है वो पढ़ना ठीक पढ़ने लग गए हैं, तो इस तरह उनके अंदर जो है वो शौक पैदा हो जाएगा और डिसहार नहीं होंगे। वरना जो है वो हौसला हार देंगे कि इतनी सारी गलतियां हैं और हम उसको कैसे ठीक करें, कैसे पढ़ रहे हैं बस पढ़ते रहते। नहीं, उनको इतना सा बताया जाए कि एक दो गलतियां हैं आपकी, अब बस आप इनको ठीक कर ले और कुरान ठीक हो जाएगा। तो जब एक दो गलतियां उनकी ठीक हो गई तो उनको खुद ब खुद जो है वो शौक पैदा हो जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि कुरान ठीक कैसे पढ़ना है। तो फिर जो है वो मोटे जो हर्फ हैं वो ठीक करवा दिए जाए, मोटे और बारीक के दरमियान फर्क करवा दिया जाए। फिर इसके बाद आस्ता आस्ता मिलती जुलती आवाज़ों वाले हरूफ जो हैं उनमें फर्क करवाना शुरू कर दिया जाए। अगर शुरू से आप उनको कहें कि भाई हा और हा, हमजा और ऐन, तो दो लगा लगा के खप ही जाएंगे, एक दो दिनों में जो है वो छोड़ देंगे सब कुछ। तो फिर उसके बाद आप उनको हरफ जो नरम पढ़ने हैं, कौन से हरफ जो है वो सख्त पढ़ने हैं, तो इस तरह की बतदरीज जो है वो आप उनको तालीम दें, ताकि जो है वो आस्ता आस्ता उसको बार बार मशक करने से, यानी एक चीज़ के ऊपर ज़्यादा मशक करेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक मशक करने से है। अगर काफ़ी सारी चीज़ें उनको बता दी जाए ना, तो फिर वो एक चीज़ के ऊपर भी सही तरह मशक नहीं कर पाएंगे। तो एक एक चीज़ के ऊपर जब वो मुसलसल मशक करेंगे तो वो ठीक होती जाएगी। क्योंकि वो जैसे अल्लामा जदरी ने अपनी मुकदमतुल जज़रिया के अंदर बयान किया ना कि वलैसा बैना हुआ बैना तरकी ही इल्ला रियादत मरीम बिफक्की ही। फ़ायदे तजवीज़ आते हों या ना आते हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क सिर्फ अमली मशक से पड़ता है। लेकिन क़वाइद तजवीज़ है, ये अमली मशक में मुआविन साबित होते हैं ज़रूर, लेकिन ये हर एक के लिए जो है वो मुआविन साबित कैसे होंगे, उसके मुताबिक उनको बताना होगा। अब पहले जो है वो किसी बुजुर्ग को, बुजुर्ग खातून को या बुजुर्ग मर्द को अगर आप एक कवायद की किताब जो है वो किसके सामने रख दें और उनको कहें कि इनको पहले याद करो, तो उनसे तो नहीं हो सकेगा ना। इसलिए उनको जो जो पढ़ाएं उसके मुताबिक उनको थोड़ा थोड़ा साथ बताते जाएं, क्योंकि उनके लिए कवायद तजवीज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, फर्ज नहीं है, सिर्फ कुरान को ठीक पढ़ना ज़रूरी है। तो इसलिए बतदरीज जो है उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो उनको पढ़ाया जाना चाहिए। एक ही दिन में 3-4 गलतियां नहीं बता देनी चाहिए। अब जो कुरान ठीक पढ़ रहा है उसके सामने कोई कुरान गलत पढ़ेगा तो हर हर हर्फ पे उसको तो बेचैनी होती है कि ये क्या है, सारे कुरान गलत पढ़े जा रहा है। एक लफ्ज पढ़ेगा तो उसके अंदर कोई और गलती होगी, अगले में कोई और गलती होगी, तो हर एक गलती ठीक कराने बैठ जाएगा वो, क्योंकि उसको बेचैनी हो रही है कि कुरान गलत पढ़ा जा रहा है। अब उसको सब्र करना पड़ेगा जरा थोड़ा सा, तहम्मुल के साथ, सब्र के साथ मुदावमत यानी हमेशगी करनी पड़ेगी कि एक ही गलती उसको कहे कि मैंने आज बाकी जितनी भी गलतियां हैं उसको बर्दाश्त करना पड़ेगा कि आज मैंने इसकी एक ही गलती ठीक करवानी है। जब तक ये एक गलती ठीक नहीं होती बाकी गलतियां चाहे वो हो रही हैं, अब वो हो तो रही हैं ठीक है, अब उसका कोई हल नहीं है ना। अब उसको ठीक करवाने के लिए हमें कुछ ना कुछ सब्र करना पड़ेगा, क्योंकि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं ना ये भी बच्चों की तरह ही होते हैं, ये याद रखें। जैसे छोटा बच्चा होता है ना तो वो एक चीज हम उसको बताने के लिए कई बार जो है वो बताते हैं और बड़े शौक से बता रहे होते हैं। साथ ये भी है क्योंकि वो बच्चा है ना, वो कई कई बार पूछेगा
हम उसको शौक से बता रहे होते हैं, इसलिए कि ये अभी बच्चा है और ये सीख रहा है, उसको कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन जो बड़ी उम्र के होते हैं वो भी आस्ता आस्ता जो है वो बच्चों की तरह होना शुरू हो जाते हैं, तो उनके साथ वही बच्चों वाला ही सलूक करना पड़ेगा। अब बच्चे को तो नहीं आप एक दिन सारी जो है वो चीजें पढ़ा देंगे, ऐसे बड़ों को पढ़ाने के लिए भी एक एक गलती को पकड़ा जाए, जो गलती नुमाया नजर आती हो उसको। मद है, अब उसको मद अगर आप सिखाना बैठ जाए पहले दिन ही कि एक अलीफ के बराबर पढ़नी है, ये मद 2 अलीफ के बराबर करनी है, ये 3 अलीफ के बराबर करनी है, हाँ जी, तो उनको क्या समझ आएगी? उनको सिर्फ इतनी सी बता दें, छोटी मद और बड़ी मद, बस। मुख्तसर से कायदे भी अगर पढ़ाने हैं किसी को तो उनको मुख्तसर कायदे जो है वो पढ़ाए जाएं, साथ साथ के हरफ मद्दा बता दिए जाए, हरफ गुन्ना बता दिए जाए कि ये गुन्ना वाले हरफ है। अब गुन्ना नीम के ऊपर कब करना है कब नहीं करना है, इतना सा उसको अगर कायदे पढ़ाना शुरू कर देना, इख्फा का कायदा ये है, इजहार का कायदा ये है, इदगाम का कायदा ये है, तो वो याद नहीं कर सके। उनको सिर्फ इतना बता दे कि मीम के ऊपर गुन्ना कब करना है कब नहीं करना, जब वो कुछ सीख जाए तो। और नून के गुन्ने, अब नून के कायदे जो हैं वो सारे उनको पढ़ाना शुरू कर दें तो वो नहीं पढ़ सकेंगे। उनको उतना सा बता दें कि नून के ऊपर गुन्ना कब करना है और कब नहीं करना है, मुख्तसर जो है वो उनको बताते जाए। जैसे अगर आप अलकौल सदीद लेना तो हर चैप्टर के शुरू में कुछ जो है वो इजमाली यानी मुख्तसर अहकाम लिखे हुए हैं। तो ये जो इजमाली यानी मुख्तसर अहकाम है, ये उन लोगों के लिए है जो बाकायदा इल्म तजवीद नहीं सीख रहे, सिर्फ उन्होंने कुरान ठीक पढ़ना सीखना है बस। तो ये उनको मुख्तसर कायदे जो है उनको बता दिए जाए, ताकि वो उतना सा पढ़ने के बाद उन कायद को याद करने के बाद बस जो है उस कुरान को ठीक पढ़े, उसको इतवाए साकिनान के कायदे पढ़ाने लग जाए, उनको हमजा के हकाम पढ़ाने लग जाए, और उनको जो है वो हाय ज़मीर के कवायद पढ़ाना शुरू कर दें, इदगाम की किस्में सारी शुरू कर दें, तो वो नहीं पढ़ सकेंगे। तो उनको मुख्तसर से कायदे साथ पढ़ाएं और एक एक गलती ठीक करवाते जाएं। तो ये तालीम देते वक्त कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस तालीम में मुआविन जो है वो साबित होती है। मसलन वाइट बोर्ड है, वहाँ पे लिख के समझा दिया जाता है कुछ चीज़ें, मिसालों के तौर पर ये हरूफ, जो हरूफ मोटे पड़े जाने हैं उन हरफों को वहाँ पे भी एक दवा अलहदा से लिख दिया जाए, तो जब उनके ऊपर नज़र अलहदा से पड़ेगी तो वो ज़हन में बैठ जाएंगे कि क्योंकि ये जो हवासे खमसा है ना, हमारे 5 हवास हैं जिनके ज़रिए से मालूमात हासिल होती हैं, उनमें से पहली हिस्स जो है ना वो है बासिरा, नज़र यानी आँख। तो ये देखने से जो इल्म हासिल होता है, ये माहिरीन इल्म जो है ना वो माहिर तालीम जो है ना वो कहते हैं कि 70% इल्म हासिल होता है देखने से। तो ये कवायद और ये हरूफ जो चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, जो सबक पढ़ाया जा रहा है, उसकी कुछ मिसालें या वो कुछ हरूफ वहाँ पे अलहदा से वाइट बोर्ड के ऊपर बड़े से ज़रा लिख दिए जाएं, तो बच्चों की नज़र सिर्फ उन हरूफ की तरफ पड़ेगी। अगर किताब के ऊपर भी हालांकि वो लिखे होते हैं, लेकिन जब किताब के ऊपर देखते हैं तो उसके साथ इर्द गिर्द दाएं बाएं काफ़ी सारी और चीज़ें भी लिखी होती हैं, तो वो नज़र जो है इधर उधर भी रहती है। लेकिन जब उसको वहाँ से निकाल के वहाँ पे वाइट बोर्ड पे लिख दिया जाएगा, यानी मुफरदात की तख्ती है, वहाँ से आप मोटे हरफों को पकड़ते हैं और वहाँ पे लिख देते हैं, तो बार बार बच्चा जब उनको देखेगा तो वो उसी तरह उसके ज़हन में नक्श हो जाएंगे। क्योंकि देखने से 70% जो है इल्म हासिल होता है। और इस तरह है हवासे खमसा में से दूसरे नंबर पर है सामिआ, ये हिस्सा है एक यानी कान, सुनना। अब सुनने से भी दूसरे नंबर पर जो है वो सुनने से इल्म हासिल होता है, जो ज्यादा यानी देखने के बाद दूसरे नंबर पर है सुनना। सुनने से इल्म उतना ज्यादा हासिल नहीं होता जितना देखने से इल्म हासिल होता है। आमतौर पर हम देखते हैं ना, देख देख कर काफी सारी चीजें दिमाग में बैठ जाती है, बच्चे भी देख देख कर काफी सारी चीजें जो है वो सीख लेते हैं। तो देखने से ज्यादा इल्म हासिल होता है। तो कोई चीज जो है वो अलहदा से
अगर आप बच्चों को दिखा दी जाए तो उनके दिमाग में बैठ जाएगी। इसी तरह जो है वो सुनने से भी दूसरे नंबर पर है। फिर इसी तरह जो है वो ये लामिसा होता है, कुव्वत लामिसा, हिस, छूना, हाथ के साथ लमस, किसी चीज को टच करके जो है वो महसूस कर लेते हैं कि ये कैसी है, नरम है, सख्त है, तो इसका ताल्लुक इसके साथ नहीं है। और एक कुव्वत शामा होती है, सूंघने से भी एक इल्म हासिल होता है। और एक कुव्वत जायका होती है, चखने से इल्म हासिल होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक हमारा जो ताल्लुक है वो कुव्वत ये बासरा, ये देखने, और उसके साथ है, इसके साथ सामया, सुनने से है ज्यादातर। तो अब बच्चों को अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उनको कुछ रिकॉर्डिंग अब आई हुई है, क्योंकि मीडिया का दौर है, तो हर तख्ती की रिकॉर्डिंग भी मौजूद होगी, कायदा पढ़ाने के तरीकाकार भी मौजूद हैं। तो बच्चों को कुछ चीज़ें बताने के बाद कुछ जब वो पढ़ लें तो उनको कुछ रिकॉर्डिंग भी सुना दी जाए, ताकि उसके जहन में वो आवाज़, सही जो आवाज़ है वो भी उसके कानों में पड़े, तो उसको सुनकर उसके मुताबिक जो है वो पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो ये जो चीज़ें होती हैं, ये वाइट बोर्ड का इस्तेमाल और इस तरह जो है ये रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल जो है, ये भी जो है वो ज़रूरी है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी ये तरीका था कि वो लिख कर भी समझाया करते थे। कुरान की एक कहता है, वअन्ना हाज़ा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु वला तत्तबिउ सुबुल फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह। तो इसके अंदर लफ्ज़ सिरात का जिक्र है और सुबुल का जिक्र है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी तफसीर समझाते हुए ज़मीन पर एक लंबी जो है वो लकीर जो है वो खींच दी, और लंबी लकीर खींचने के बाद बताया कि ये सिरात है, ये एक सीधा रास्ता, एक लंबा रास्ता है। फिर उसके दाएं बाएं छोटी छोटी जो है वो लाइनें भी जो है वो लगा के, लकीरें जो है वो खींच कर फरमाया कि ये सुबल हैं, ये रास्ते हैं, और हर रास्ते पे, हर सबील पे शैतान जो है वो बैठा हुआ है कि वो अपनी तरफ खींचने की जो है वो कोशिश करता है। तो ये नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़मीन के ऊपर लकीर लगाकर यानी सहाबा कराम को जो है समझाया। तो ये भी एक तरीका है कि वाइट बोर्ड को इस्तेमाल किया जाए और वहाँ पे कुछ चीज़ें जो है वो लिखी जाएं और लिख कर, ताकि बच्चों की, पढ़ने वालों की नज़र जो है उनकी तरफ मरकूज रहे और उनको इधर उधर से तवज्जो हटाकर उसकी तरफ देखें, और ताकि उनके ज़हन में ये चीज़ बैठ जाए। और फिर बच्चों को अलहदा अलहदा बैठा कर उनको हैंड फ्री लगा दें, मोबाइल है, कंप्यूटर है, उसके अंदर जो सबक पढ़ाया जा रहा है उसके मुतल्लिका वहाँ नेट से मिल जाती हैं चीज़ें, रिकॉर्डिंग मौजूद है, तो वो उनको सुनाई जाए, बार बार सुनाई जाए, बार बार सुनाई जाए, और फिर उसके मुताबिक उनको पढ़ाने की मशक की जाए। तो इस तरह जो है ये बच्चे इब्तदा से ही जो है उस क़वाइद तजवीज़ के मुताबिक ही सीखेंगे। और तीसरी किस्म है हमारे दरमियान में जो हुफ़ाज़ होते हैं या जिन्होंने नाज़रा पढ़ लिया होता है, अब उनके अंदर भी कुछ गलतियां हैं। उनको एक होता है कि सिंपल एक लाने जली से बचना और एक है कि लाने खफी से बचना है। अब उनको क़वाइद तजवीद भी पढ़ाने हैं और तरतील भी साथ पढ़ानी है। अब क़वाइद तजवीद के लिए बेहतर तो यह है कि पहले एक इब्तदाई किताब हो जिसके अंदर मुख्तसर जो है वो अहकाम तजवीज़ के लिखे हुए हों, खारिज भी उसमें आ जाते हैं, सिफात भी आ जाती है, बहुत ज़्यादा ना हो। तो ज़रूरी नहीं होता कि किताब पढ़ाते वक्त जो तरतीब किताब वाले ने लगा दी है उसी तरतीब से ही पढ़ाया जाए, अगरचे उसका ताल्लुक अभी उस तालिब इल्म के साथ ना हो जो तरतील अभी सीख रहा है। अब उसको तरतील उसको सिखाना शुरू की है तो उसको शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिया है, ये बसमला के अहकाम, फसल वसल के एतबार से जो अहकाम पढ़ाए जा रहे होते हैं वो। अब अगर ये शुरू में ये छोड़ भी दिए जाएं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, वो अहकाम उसको पढ़ा दिए जाएं
جو شروع سے اپلائی کیے جا رہے ہیں. پتہ ہے کہ مخارج بھی ہو سکتے ہیں، وہ صفات بھی ہو سکتی ہیں، یا پھر جو ہے وہ میم ساکن کے نون ساکن کے احکام بھی ہو سکتے ہیں، تاکہ جو ہے وہ کچھ چیزیں جو ہے وہ سیکھ لے اور اس کے بعد اس کا تھوڑا سا ذہن بھی کھل جائے گا، تھوڑا سا ذہن وسیع بھی ہو جائے گا اور دوسری چیزیں بھی ان کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی. بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ یہ فصل وصل کے احکام بچے کو سمجھ نہیں آ رہے ہوتے، کیونکہ اس کا پریکٹیکل کے ساتھ ابھی شروع میں کوئی زیادہ تعلق نہیں ہوتا، نہ ہی اس کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے. تو شروع سے اگر یہ فصل چھوڑ بھی دی جائے تو اس کو مخارج یا صفات یا میم ساکن یا نون ساکن کے احکام پہلے پڑھا دیے جائیں اور مد کے احکام پہلے پڑھا دیے جائیں، تاکہ ترتیل جب آپ اس کو سکھا رہے ہیں تو ترتیل کے ساتھ زیادہ تعلق جو ہے وہ کس کا ہے؟ مخارج کا، صفات کا، اور اسی طرح ہی میم ساکن کے احکام کا، نون ساکن کے جو احکام ہیں ان کا تعلق ہے. تو وہ قواعد جو ہے وہ بچوں کو پہلے پڑھا دیے جائیں، تاکہ قرآن پڑھاتے وقت ان قواعد کے مطابق ترتیل کرواتے وقت وہ قواعد جب وہ بچہ دیکھے گا کہ یہ تو میرے کام آ رہے ہیں، اس سے قرآن جو ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، تو اس کی دلچسپی بھی پیدا ہو جائے گی. فصل وصل کے احکام جو ہیں ان کو شروع میں پڑھا دیے جائیں تو اس کو بات سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی اور اس کا کوئی خاص تعلق بھی نہیں ہوتا. یہ ایک اضافی سی چیز ہے اور یہ نہ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، لیکن یہ جو احکام ہے جس کی مدد سے اس نے قرآن ٹھیک کرنا ہے، تو وہ جو زیادہ ضروری ہیں پہلے وہ پڑھائے جانے چاہیے. اگر شروع سے اس کو کوئی اجتماعی ساکنین کی فصل جو ہے پڑھانا شروع کر دی جائے، وہ تو ویسے بھی آخر میں ہی آتی ہے جا کر، لیکن مطلب یہ ہے کہ جو آسان ہو اور جس کا تعلق زیادہ ہو وہ چیزیں پہلے پڑھائی جانی چاہیے، اور جو مشکل ہیں اور ان کا تعلق بھی زیادہ نہیں ہے وہ بعد میں پڑھائی جانی چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ یہاں پہ بھی ایک ترتیل پڑھاتے وقت بھی یہ تدریج کو وہ سامنے جو ہے وہ رکھا جانا چاہیے کہ ایک دم ہی ساری غلطیاں ان کو اس کو بھی نہ بتائی جائے. اس میں بھی ایک فصل پہلے پڑھا دی گئی ہے قواعد کی، تو ان قواعد کی عملی مشق کروائی جائے، بار بار جو ہے ان کی مشق کروائی جائے، بار بار ان کی مشق کروائی جائے، تاکہ وہ جو فصل پڑھائی ہے وہ پختہ ہو. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ہاں کہ قواعد تجوید پہ تو زیادہ زور دے دیتے ہیں، کتاب کو اچھی طرح پڑھا دیتے ہیں، یاد کروا دیتے ہیں، اور اس کے مطابق مشق کوئی نہیں کروائی جا رہی ہوتی. مخارج کا باب پورا یاد کروا دیا گیا ہے لیکن اس کے مطابق مشق نہیں کروائی. تو مخارج کا باب پڑھاتے وقت جب ابتدائی 2-3 مخرج پڑھائے ہیں تو پہلے اس کے مطابق اس کی مشق ہونی چاہیے. اب سب کا یہ بھی ہوتا ہے کہ چلو میں نے تو قواعد تجوید پڑھانے ہیں، مشق کرانے کے لیے کوئی اور ہوگا، ایسے نہیں ہے. یہ جو قواعد پڑھا رہا ہے وہی ساتھ مشق کرائے تو بچوں کو زیادہ سمجھ آئے گی. بس اوقات یہ مدارس میں بھی ہوتا یہ ہے کہ مشق کرانے کے لیے کوئی اور استاد ہوتے ہیں اور قواعد پڑھانے کے لیے کوئی اور ہوتے ہیں. اب جو قواعد پڑھایا جا رہا ہے وہ اپنے انداز سے قواعد پڑھایا جا رہا ہے، اور جو مشق کروا رہا ہے وہ اپنے انداز سے مشق کروایا جا رہا ہے. تو ایک ہی اگر ٹیچر قواعد بھی پڑھائے اور اس کی عملی مشق بھی کروائے اور ایک ایک فصل کی ساتھ ساتھ مشق کرواتے جائیں، یہ نہیں کہ پوری کتاب پہلے پڑھائیں گے پھر اس کے بعد مشق کروائیں گے، تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے. مخارج کا بیان پڑھایا جا رہا ہے، جو مخرج پڑھائے گئے ہیں ان کی بار بار جو ہے وہ مشق ہونی چاہیے اور پھر آگے جانا چاہیے. پھر اس طرح جو ہے وہ صفات کا بیان جب شروع ہو، صفات کا چیپٹر ہے، باب ہے، اس کو پڑھائیں تو پھر اس کی بھی ساتھ ساتھ مشق کروائی جائے. تو اسی طرح جو ہے وہ ہر چیپٹر کو پڑھاتے ہوئے اس کی ساتھ ساتھ عملی مشق ہونا ضروری ہے. عملی مشق کے بغیر قواعد تجوید کا پڑھنا یہ فائدہ نہیں دیتا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اس لیے قواعد تجوید کے ساتھ ساتھ عملی مشق کے اوپر زیادہ زور دیا جانا چاہیے. اور پھر عملی مشق کرواتے وقت کچھ دیر جو ہے اس کو مشق کروا دی جائے اور پھر ان کو خود وقت دیا جائے کہ بچوں کو کہ وہ خود بار بار جو ہے وہ اس کی مشق کریں، اور پھر مشق کرنے کے بعد اب پھر آ کر استاد کو وہ سنائیں.
कुछ देर उस्ताद खुद जाए मशक कराए। बस अवकाश ये होता है कि क्लास में इज्तिमाई तौर पर मशक करवा दी जाती है, तो ये भी तरीका ठीक नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब 4 स्टूडेंट हैं, 5 हैं या 10 हैं, अब उनको मशक करवाई जा रही है। अब जब उस्ताद पढ़ेगा तो बच्चे तो चलो कम से कम सुन लेंगे कि उस्ताद ने कैसे पढ़ा है, टीचर ने कैसे पढ़ा है। अब जब बच्चे पढ़ेंगे तो टीचर को क्या पता चलेगा कि बच्चों ने कैसे पढ़ा है? तो हर बच्चे को लहदा मशक करवाई जानी चाहिए। अब इससे थोड़ा सा वक्त मिल जाए उसको, लेकिन पता तो चले ना कि बच्चा क्या पढ़ रहा है और उस्ताद क्या पढ़ रहा है। बच्चे की तवज्जो भी रहेगी उस्ताद की तरफ। जब इज्तिमाई होता है तो बच्चे तवज्जो भी नहीं कर रहे होते, टीचर की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं होती, बस उनके कानों में आवाज तकरारी होती है, लेकिन उनको अंदाज का नहीं पता चल रहा होता और वो गौर नहीं कर रहे होते कि उस्ताद ने कैसे पढ़ा है और हमने इसी तरह कैसे पढ़ना है। और वो भी क्या करते हैं, जब बच्चे सब मिलके पढ़ते हैं ना तो वो भी साथ आवाज निकाल देते हैं। अक्सर बच्चे ऐसे होते हैं कि साथ आवाज निकाल देते हैं और जो ही खत्म होती है अपनी आवाज भी बंद कर लेते हैं। तो हर बच्चे को अलग-अलग मशक करवाई जानी चाहिए। और फिर उसके साथ साथ कोई अच्छे जो कारी हैं, कुर्रा हैं, इनका तलफ़ुज़, लहजा या अंदाज अच्छा हो। ज्यादा जोर जो है वो तलफ़ुज़ की अदायगी जो है वो होती है, अच्छी आवाज को नहीं देखते, किसकी आवाज अच्छी है उस पे लगा दें। हाँ, अच्छी आवाज भी होनी चाहिए। और बच्चे के रुझान को भी देख लिया जाए कि बच्चे का रुझान किस तरफ है या कौन सा लहजा वो इख्तियार कर सकता है। तो वो लहजा जब वो उस अंदाज में पढ़ने की कोशिश भी करेगा तो उसका तलफ़ुज़ भी उसके मुताबिक ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो जिस लहजे की तरफ उसका रुझान हो तो उसकी रिकॉर्डिंग उतना सा जो सबक है उसको जो है वो बार बार जो है रिपीट करवाया जाए, सुनवाया जाए। बार बच्चे कुरान हिफ्स कर रहे होते हैं ना, तो हिफ्स करते वक्त जो उसका सबक हो, जो रुकू है ना, वो उसका पहले नाजरा ठीक करवाने के बाद बच्चे को बार बार जो है ना वो एक रुकू उसके कानों में, ज्यादा बेहतर यह है कि उसके कानों में हैंड फ्री ये जो होता है ना, ये लगा दी जाए, ताकि आवाज जो है वो यकसू होकर उसके कान में जाएगी और वो गौर से सुनेगा भी। फिर उसके बाद उसके मुताबिक जो है ना उसको पढ़े। तो ये है कि बच्चों को साथ साथ मशक करवाई जानी चाहिए, और मशक अकेले अकेले बच्चे को, अकेले अकेले स्टूडेंट को होनी चाहिए, ताकि ये होता है बिलमुशाफा पढ़ना। अब ये बिलमुशाफा ये ना हो कि 10 बच्चों को इकट्ठे पढ़ा दिया है, हो ये बिलमुशाफा कि उस्ताद के सामने बैठ के पढ़ रहे हैं जी, लेकिन उस्ताद के सामने तो बैठ के पढ़ रहे हैं, लेकिन सामने होने के बावजूद भी समझे कि वो सामने नहीं है। जब सारे बच्चे आवाज इकट्ठी निकालेंगे तो उस्ताद को क्या पता चलेगा। इसी तरह ही जब कुरान नाज़िल हो रहा था ना, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जिब्रील के साथ साथ जो है वो फटाफट पढ़ना शुरू कर देते, ताकि कोई लफ्ज जो है ये इसमें से कुछ कलिमा, कोई आयत जो है वो रह ना जाए। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील के जरिए वो सूरह क़यामा की जो आयत है ना, ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजला बिही इन्ना अलैना जमअहु व कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना फइज़ा क़रअनाहु फत्तबि कुरआना। कहा गया कि आप अपनी जुबान को जल्दी जल्दी हरकत ना दिया करें, जब कुरान पढ़ा जाए तब आप उसकी इत्तिबा करें, उसके पीछे पढ़े। मतलब यह कि जिब्रील जब पढ़ रहे हों तो गौर से सुने, ताकि उसकी अदायगी का पता चले कि अदायगी क्या होनी है। फिर उसके बाद जो है वो आप पढ़े। आपके सीने में महफूज करना ये हमारा काम है। अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसको महफूज कर देंगे। आप इस खौफ से, इस डर से फटाफट पीछे पीछे ना पढ़ना शुरू कर दिया करें कि कहीं रह ना जाए इसमें से कुछ हिस्सा कुरान का। तो मकसद क्या था कि कुरान की अदायगी, अल्लाह का कलाम है ना, दुनिया में जो कलाम होते हैं ना, लोगों के कलाम है ना, कोई गजल है, कोई नसर है, कोई शेर है, कोई नज़म है, कोई नात है, तो जिसने लिखी हो वो खुद पढ़ भी दे तो वो उसके आवाज के उतार चढ़ाव को, अल्फाज किस लफ्ज पे आवाज को कैसे निकालना है, कहाँ पे आवाज को उठाना है, कहाँ पे आवाज को नीचा करना है, वो खुद समझ रहा होता है, क्योंकि उसने खुद अल्फाज तख्लीक किए होते हैं। तो जिस अंदाज से वो पढ़ता है ना, वो खुद पढ़ रहे तो लोग फिर उसी अंदाज में पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारे यहाँ होता है ना, ये जब अंग्रेजी सीखते हैं, इंग्लिश सीख रहे होते हैं ना, इंग्लिश लैंग्वेज सीख रहे होते हैं,
تو वो देखते हैं कि जिस तरह उस्ताद जो है वो बोल रहा है उस तरह जो है वो जुमले को अदा करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारी लैंग्वेज उसी के मुताबिक हो। तो अंग्रेज है तो उसके मुताबिक जो है वो फौरन जो है वो लहजा इख्तियार करने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम जब पढ़ते तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा गया था कि आप पहले इसको सुने और फिर इसको जो है वो पढ़े। तो इसी तरह ही सबसे पहले उस्ताद खुद पढ़े, ये नहीं कहे कि बच्चे को तुम पढ़ो, बच्चे को नहीं कहना कि तुम पढ़ो, क्योंकि बच्चा अगर पढ़ेगा ना तो वो पहले गलत पढ़ देगा, गलत उसकी जबान से अदा हो जाएगा तो वो उसकी जबान पे वो जारी हो जाएगा ना गलत, तो फिर उसको ठीक कराना मुश्किल हो जाता है। इसलिए सबसे पहले उस्ताद को खुद चाहिए कि वो खुद पढ़े और स्टूडेंट जो है वो सुने। सुनने के बाद फिर उस बच्चे को कहा जाए, उस स्टूडेंट को कहा जाए कि तुम पढ़ो, और फिर वो पढ़े, फिर उसके अंदर जो गलतियां होंगी उसको ठीक करवाई जाएंगी। तो इसके मुताबिक अगर तालीम दी जाएगी तो ये उम्मीद है कि बच्चों को, स्टूडेंट जो है उनको बहुत फायदा होगा। तो मैंने ये 3 तरह की, एक तो तजवीज़ की 2 किस्में हैं, एक अमली है और एक इल्मी है। इल्मी का मतलब है कि क़वाइद तजवीज़ के मुताबिक कुरान को पढ़ना, और अमली का मतलब क़वाइद तजवीज़ के मुताबिक कुरान को पढ़ा जाए, कुरान को तजवीज़ के मुताबिक पढ़ा जाए, और इसका ताल्लुक मशक से है। जितनी ज़्यादा मशक करवाएंगे उतना ज़्यादा कुरान ठीक होगा। और इल्मी का मतलब क्या है कि क़वाइद तजवीज़ को याद करना, और क़वाइद तजवीज़ को याद करने के बाद उन क़वाइद की रोशनी में मशक करवाई जाएगी तो इसमें आसानी होगी। अगरचे जो है वो क़वाइद तजवीज़ के बगैर भी मशक करवा दी जाए तो कुरान ठीक हो जाए तो ये ठीक है। मकसद कुरान ठीक पढ़ना और पढ़ाना है, मकसद क़वाइद तजवीज़ याद करवाना नहीं है। सहाबाए किराम के दौर में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में ये कायदे नहीं थे। इसलिए नहीं थे कि उनकी ज़बान अरबी थी और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते और उसी तरह पढ़ लेते, बस बस मकसद तो यही था सिर्फ। अब ये जो क़वाइद तजवीज़ है ये अजमियों के लिए मुरतब किए गए हैं ताकि इन क़वाइद की रोशनी में कुरान की सही जो है वो अदायगी कर सके, वरना इन क़वाइद की कतई ज़रूरत नहीं है। ये क़वाइद जो है ये कुरान की सही अदायगी में मुआविन और मुमिद जो है वो साबित होते हैं। तो इनको इसी तरह, इसी सानवी हैसियत इसको दी जानी चाहिए। जितनी ज़्यादा अहमियत जो है वो हम इस दौर में क़वाइद तजवीज़ को देते हैं, उतनी ज़्यादा अहमियत जो है मशक को नहीं दी जा रही होती। तो मशक की अहमियत जो है वो ज़्यादा है, लिहाजा उसको पहले नंबर पे रखना चाहिए। तो मशक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए ताकि पढ़ने वाले को पता चले कि असल जो है वो मशक है, असल क़वाइद तजवीज़ नहीं है। जबकि हमने क़वाइद तजवीज़ को असल बना लिया है और मशक को जो है वो सानवी हैसियत दे दी है। इसलिए मशक के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। तो ये मशक, ये क्या है, अमली है, और क़वाइद जो है ये क्या है, इल्मी है। क़वाइद तजवीज़ की रोशनी में मशक की जाएगी तो इससे फ़ायदा जो है वो ज़्यादा हासिल होगा। और फिर यह है कि बच्चों को पढ़ाने का तरीका, यानी उनको इब्तदा ही से जो जो लफ्ज़ पढ़ाए जाएँ वो ठीक तजवीज़ के साथ ही पढ़ाए जाएँ ताकि उनको बाद में अलहदा से तजवीज़ पढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। बाद मदारस ऐसे हैं जहाँ पे वो तजवीज़ पढ़ाते नहीं है, बाकायदा क़वाइद तजवीज़ उनके यहाँ नहीं है। ये देवबंदियों के बाद मदारस हैं, उन्हें खुद जाके देखा है। तो जब वो बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो साथ साथ ही पढ़ा रहे होते हैं और उनके यहाँ बाकायदा तजवीज़ का कोर्स ही नहीं होता। वहाँ से पढ़ने वाले कारी तो होते हैं लेकिन उनसे पूछते हैं कोई किताब पढ़ी है तो वो कहते हैं हमने कोई किताब नहीं पढ़ी, क़वाइद तजवीज़ हमने नहीं पढ़े, लेकिन कुरान ठीक पढ़ रहे होते हैं। तो उनका उनको सिर्फ नुकसान इतना हो सकता है कि जब उन्होंने आगे पढ़ाना है तो उनको पढ़ाने में मुश्किल आएगी। कुछ कवायद तो है ना जिन कवायद के बगैर जो है वो कुरान को सीखे बगैर जो है वो कुरान को सीख पढ़ना मुश्किल भी हो जाता है, लेकिन मकसद जो उनका होता है वो उन्होंने खुद हासिल कर लिया होता है कि कुरान ठीक पढ़ रहे होते हैं। तो इसलिए मशक को पहले नंबर पे रखा जाए और कवायद तजवीज़ को दूसरे नंबर पे रखा जाना चाहिए, ठीक है। और बड़ों को, बड़ी उम्र के जो लोग उनको पढ़ाना है
تو ان کو بھی بتایا کہ بتدریج ہونا چاہیے, اسٹیپ بائی اسٹیپ ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ ایک دن ہی ساری غلطیاں نکال دیں, ایک دن کوئی غلطیاں نہیں, ساری نہیں ٹھیک نہیں ہوں گی, خود بھی جو ہے وہ تھکیں گے اور ان کو بھی تھکائیں گے. تو اس لیے ایک ایک غلطی جو ہے وہ ٹھیک رہی جانی چاہیے. تو یہ کچھ باتیں, کچھ چیزیں میرے ذہن میں تھیں, وہ میں نے بتا دی ہیں آپ لوگوں کو. اور آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو, کوئی بات پوچھنے والی ہو تو آپ پوچھ لیں. مزید بات میرے ذہن میں نہیں ہے کہ میں آپ کو بتاؤں. السلام. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ بہت ہمیں فائدہ ہو رہا ہے, بہت زیادہ آپ نے اچھے طریقے سے ہمیں سکھایا ہے. اور ایک چیز میری ایک اسٹوڈنٹ کے لیے میں تھوڑا سا, اگر آپ کہیں تو مجھے چھوٹی سی چیز نا میں پوچھنا چاہ رہی تھی. وہ ہر حمزہ کو نا ہا بولتی ہے, ویسے بھی بہت ساری غلطیاں ہیں لیکن یہ ہاں نہیں میں کام کر پا رہی, تو اس کے لیے کوئی رہنمائی. ہر حمزہ کو ہا بولتی ہیں, یعنی جیسے وین اونا ہے نا تو وہ ضروری ہا کر دے گی, وین اونا یعنی اس سے نہیں کنٹرول کہ وہ حمزہ کو سٹارٹ میں ہو چاہے تو یا اینڈ پہ ہو, ہر حمزہ اس کا ہا بن جاتا ہے. تو وہ بہت میں نے اس کو ڈرل بھی کروائی ہے, مشق بھی کروائی ہے, بار بار پیچھے بھی بلوایا ہے, لیکن وہ بالکل بے بس ہے. اس میں مجھے کیا کرنا ہوگا؟ بڑی عمر ہے یا چھوٹی عمر کی ہے؟ بڑی کالج جاتی ہے. مطلب ہے کہ وہ اتنی بڑی نہیں ہے کہ جس کی زبان جو ہے وہ ہاں جی جی تو جی. عام باتیں کرنے میں بھی حمزہ کی آواز جو ہے وہ ہا کی طرح نکالتی ہے, یا قرآن پڑھتے ہوئے بس؟ میرا خیال ہے کہ باقی نارمل بولتی ہے. وہ آن لائن میری یہ جو کلاس ہے نا اس میں ہے, اس لیے بس وہی 1 گھنٹہ ہوتا ہے جس میں اس سے ملاقات ہوتی ہے. تو اس کا یہی ہے کہ اس کو اس حرف کی علیحدہ سے اکیلے حرف کی جو ہے وہ مشق کروائی جانی چاہیے, اور زبر زیر پیش کے ساتھ آ ای او آ ای او ایسے جو ہے اس کی علیحدہ سے. ایک ہے کلمے کے اندر جب وہ پڑھے گی نا لفظ کے اندر, تو وہ وہاں پہ لفظ جو ہے وہ حرف اکٹھے ہوتے ہیں, ہر ہاں حرف جی کی آواز ایک حرف ہے اس کے ساتھ ہی وہ آیا ہوتا ہے, تو وہ جی مشکل ہو جائے گی. ہر حرف کی جو حرف ٹھیک کروانا ہو نا اس ہاں جی حرف کی علیحدہ مشق کروائی جائے اس کو. ٹھیک اور ہے. کیسے کروانی ہے؟ اس حرف کو ساکن کرنا ہے, ساکن کرنے کے ساتھ اس کے شروع میں حمزہ لگانا ہے. بالکل مثلا ٹھیک با ہے. کی مشق کروانی ہے تو با کو علیحدہ ایک حرف اکیلا رکھ کر اب اب اب, اب اس کے ساتھ اس کی حمزہ کی مشق بھی ہو جائے گی. اور جی حمزہ پڑھانا ہے تو وہ بھی اسی طرح ہی ہے, آ اے او آ اے او, اس طرح جو ہے اس کی مشق کروائی جائے تو امید ہے کہ وہ فائدہ ہوگا. کیونکہ اگر آپ اس کو کلمے کے اندر اس کو کہیں نا کہ ہاں اس کو جی ٹھیک کرو, تو وہاں پہ نہیں وہ ٹھیک کر سکے گی. اس حمزہ کو علیحدہ سے یا باقی جو حرف تہجی ہیں ان کے ساتھ لگا کر اس کو پڑھایا جی جائے تو وہ باقی حرف بھی ٹھیک ہوں گے اور حمزہ بھی ٹھیک ہو جائے گا ساتھ انشاءاللہ. یہ بہت اچھی گائیڈ لائن آپ نے دی, جزاک اللہ خیر. میں ضرور اس پہ کام کروں گی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاد محترم. جی جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم, کوشش کے باوجود اور دوسرا یہ کہ کچھ طالبات ایسے یعنی کہ ہوں کہ جنہیں قواعد اچھے سے پکے آتے بھی ہیں اور وہ انہیں پتہ بھی ہے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود جب وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں یا پڑھ رہے ہوتے ہیں تو پھر وہاں پہ کبھی کبھی کوئی نہ کوئی قاعدہ چھوڑ جاتے ہیں, اور جب انہیں یاد دہانی دلائی جائے کہ یہاں پہ یہ قاعدہ ہو رہا ہے آپ یہ قاعدہ کریں, تب انہیں یاد آ جاتا ہے اور اچھے سے پکے قواعد بھی ہوتے ہیں, لیکن اس کے جی باوجود جی وہ جی مس کر دیتے ہیں. تو یہ اس کا کیا ہاں, طریقہ کار ہو یا کیا چیز ہوگی جس یہی بات میں پہلے بتا رہا تھا کہ ہمارا زور قواعد تجوید پہ زیادہ ہوتا ہے, عملی مشق پہ کم ہوتا ہے. تو ان کی یہ مشق کی ضرورت ہے. مشق جتنی زیادہ کریں گے اتنی زیادہ جو ہے وہ ٹھیک ہوگی. ابھی آپ کہیں کہ فوراً جلدی سے ہو جائے, نہیں ہوگا. وہ قرآن کو قواعد تجوید کے مطابق پڑھتے رہیں گے, آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہونا ہے. جیسے یہ کہ نا کوئی ایک ڈرائیور ہے, وہ شروع میں ابتدائی ڈرائیونگ سیکھے تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ابتدا میں تو بڑے روڈ پہ بھی نہیں چل سکتے, چھوٹے روڈ پہ بھی نہیں چل سکیں گے, بڑے کھلے میدان میں اس کو چلنا پڑے گا. کھلے میدان میں بھی کیا کریں گے, کبھی کدھر جا رہے ہوں گے کبھی کدھر جا رہے ہوں گے.
सीधा नहीं वो चल सकेंगे। फिर आस्ता आस्ता उसको जगह तंग दी जाती है, कैसे चले आप। फिर आस्ता आस्ता जो है वो रश वाले में आते हैं। फिर आस्ता आस्ता जो है ना वो बड़े रोड पे आते हैं। बड़े रोड पे फिर इतनी ज़्यादा गाड़ियाँ होती हैं, आगे भी गाड़ियाँ, पीछे भी गाड़ियाँ, इस सिग्नल पे रुक गए वहाँ पे भी गाड़ियाँ हैं। बस औकात जगह तंग होती है, गाड़ी को रिवर्स करना पड़ता है। तो यही होता है कि जब वो गाड़ी चला चला के पुख्ता हो चुके होते हैं ना, फिर वो बसाव का ये भी होता है, देख रहे होते हैं कि वो सामने देख भी नहीं रहे होते और बड़े आराम से जो है वो गाड़ी चलाए जा रहे होते हैं और स्टीयरिंग को सिर्फ एक उंगली से घुमा रहे होते हैं। तो ये कुरान करीम भी जो है इसकी तिलावत ये भी इसी तरह ही है कि इसकी बार बार मशक करनी पड़ेगी, बार बार मशक करते रहेंगे, तब जो है वो खुद जो है वो ठीक होना शुरू हो जाएगा। या तो फिर वो कुरान की तिलावत ज़्यादा करते नहीं है, उस्ताद के सामने जितना पढ़ लिया बस पढ़ लिया, उसके बाद वो पढ़ते नहीं होंगे, वो मशक नहीं कर रहे। अब ये तो नहीं है कि ड्राइविंग सिखाने वाला उसको 2-3 किलोमीटर 4 किलोमीटर थोड़ा सा सफ़र करवा दे और उस गाड़ी घर में खड़ी कर दी, कल को फिर वो जो सिखाने वाला है वो आए और थोड़ा सा चला के फिर वो गाड़ी खड़ी कर दे, तो वो तो ज़ाहिर है वो नहीं चला सकेगा ना। उसको खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मशक करनी पड़ेगी, और जितना कुरान ज़्यादा पढ़ेंगे उतने ये कवायद जो है वो ठीक होंगे। वरना ये तो हर लफ्ज़ में गुन्ना आ रहा है, कभी इजहार आ रहा है, कभी इख्फा आ रहा है, कि क्या हो रहा होता है। तो ये कुरान जो पढ़ रहे होते हैं ये कोई वही नाज़िल कुछ सामने तो नहीं होती हर चीज़ें, क्योंकि ये प्रैक्टिस होती है, मशक होती है। फिर वो ज़बान जो है वो पक्की हो जाती है और ज़बान गलती खुद करने ही नहीं देती, गलती करना चाहे भी तो नहीं हो सकती होती। देखना कि जहाँ पे गुनाह करना है तो वो गुनाह कर करके मशक कर करके इतने पुख्ता हो चुके होते हैं वो हरूफ के, वहाँ पे अगर आप गुनाह छोड़ना चाहें तो छोड़ा नहीं जा रहा होता। और जहाँ पे गुनाह नहीं करना होता वहाँ पे अगर गुनाह करना चाहें, हरूफे हल्की हैं, अब हरूफे हल्की की मशक इतनी ज़्यादा की होती है कि गुनाह नहीं करना, गुनाह ना करने की, कि अगर वहाँ पे गुनाह करना चाहें तो वो हो नहीं रहा होता, गुनाह करना चाहें तो वो नहीं हो रहा होता, क्योंकि वहाँ पे गुनाह ना करने की मशक की होती है ना। अब ये तो नहीं होता कि वहाँ पे एक लफ्ज़ में वो ठहर कर देखते हैं कि यहाँ पे गुनाह होना है कि नहीं होना, फिर आगे देखते हैं गुनाह होना कि नहीं होना, वो प्रैक्टिस हो जाती है, बार बार हो जाती है। ऐसे ही समझे जैसे नमाज में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं। अब सूरह फातिहा हम लोग 5 नमाजें पढ़ते हैं रोजाना, और 5 नमाजों में कई बार सूरह फातिहा पढ़ी जा रही होती है। अब क्या होता क्या है, बताओ का ये होता है कि नमाज में जाके शामिल हो गए हैं और सूरह फातिहा की तरफ तवज्जो कोई नहीं होती है हमारी कि हमने पढ़नी है, वो ज़बान पे खुद ब खुद जारी हो जाती है और पूरी सूरह फातिहा हम पढ़ छोड़ते हैं, हालांकि तवज्जो कोई नहीं की होती, तवज्जो कहीं और भी चली जाती है बताओ का। लेकिन सूरह फातिहा ये नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है कि सूरह फातिहा आधी पढ़े और तवज्जो कहीं और चली जाए, वो सूरह फातिहा खुद ब खुद मुकम्मल हो जाती है क्योंकि मशक इतनी की होती है। तो ये है उसमें मशक की कमी होती है, तो मशक बार बार करवाई जाए तो इंशाल्लाह जो है वो ठीक हो जाएगा। कुरान जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा ठीक होगा, बस यही तरीकाकार होता है। इंशाल्लाह जी उस्ताद भाई। दूसरी बात उस्ताद मोहतरम ये कि एक तालिबा है मेरी लाइव, तो सही यंग है, बंदा कहे कि ये बूढ़ी भी नहीं है, सही यंग है, लेकिन ज़ौद का मखरज उनसे सही नहीं निकलता कोशिश के बावजूद, और उन्हें अलग से यानी कि बाकायदा जैसे मैं उनकी करीब खड़े हो के भी साथ हो के भी बताया है कि ज़ुबान इस तरीके से यहाँ पे आपने लगानी है, लेकिन उसके बावजूद उनसे निकल नहीं रहा, ज़ौद सही नहीं अदा हो रहा, तो क्या? वो होता ही होगा फिर कि वो हाफा लिसान के साथ साथ तरफे लिसान को या रासे लिसान को भी ऊपर दांतों के साथ लगा रही होंगी। उनको जी ये बताया जाए कि जुबान की नोक जो है वो अगला हिस्सा जो है जुबान का वो नीचे रखना है और सिर्फ जुबान की करवट जो हाफा है उसके ऊपर उठाना है, उसके ऊपर उठाकर फिर उसके मुताबिक मशक करनी है। आमतौर पर होता यह है कि ज़ुआद की दहकी के वक्त ज़बान की नोक को ऊपर उठा दिया जाता है, जब ज़बान की नोक ऊपर उठाएंगे तो ज़ाहिर है वो ज़ुआद सही अदा नहीं होगा। तो ये खसूसी तौर पर ये होना चाहिए कि ज़बान की नोक जो है वो नीचे रखी जाए पूरे इहतमाम के साथ और करवट को ऊपर उठाया जाए और उसकी बार बार इस तरह जो है वो मशक करवाई जाए। तो जहाँ तक मुमकिन है आप उसकी मशक करवा दें तो जितना आपसे हो सकता है कि अल्लाह ताला की तौफीक से आपको उसका अजर मिल जाएगा जो आपने मेहनत की है, कोशिश की है। तो सबका ये भी होता है, बाद लोगों की ज़बान भी ऐसी होती है ना कि वो कोशिश करने के बावजूद भी वो मुश्किल हो रहा होता है, लेकिन उसका एक तरीकाकार जो ये है कि ज़बान उसका मखरज है वो सही अदा होना चाहिए कि ज़बान की नोक नीचे रहे और ज़बान की करवट जो है उसके ऊपर उठाया जाए और आराम आराम से एक हर्फ को मतलब है कि जल्दी ना पढ़ाया जाए, उसको जो है वो ठहर ठहर के पढ़ ले। वाला अगर जल्दी से करोगे बोला लीन पड़े
वो नहीं पढ़ सकते होते ना, जैसे ये ना मतलब अनआमता अलैहिम, अब नून जहाँ पे बाद में हरूफ हल्की आ रहे होते हैं वगैरह आ रहे होते हैं तो वहां पे नून आमतौर पर हिल जाता है, उसको बार बार मशक करवाए जाते हैं कि नून को हिलाना नहीं है, अनआमता उसको पढ़े अनआमता नहीं, वो नहीं कर सकेगी। उसका तरीका ये होता है कि थोड़ा सा वक्फा कराया जाए, अन आमता अन आमता अन आमता, हम तो जल्दी से पढ़ लेंगे ना अन आमता, तो वो जल्दी से पढ़ेंगे ना अन आमता, नून को हिलाएंगे। अब उसका क्या तरीका है कि थोड़ा सा वक्फा करवा ले, अन आमता अन आमता, तो जोरोफिन हारिन वो पढ़ेंगे जोरोफिन हारिन, जोरोफिन कलकल आ जाएगा। अब इसका क्या तरीका है, थोड़ा सा वक्फा करवाए दरमियान में, जोरोफिन हारिन जोरोफिन हारिन, अब आसा सा वो वक्फा जो है वो भी खत्म हो जाएगा, जोरोफिन हारिन आदाबुन अलीम पढ़ देते, आदाबुन अलीम आदाबुन अलीम या अलीम, तो इस तरह ये है वालाउ या आउ, ज़ुआद की अलहदा से मशक करवाएं और ज़बान की नोक नीचे रखवाएं। अगर वो आप आयात के अंदर उसको ठीक करवाएंगे तो वो नहीं हो सकेगा, उसको अलहदा से ही ठीक करवाना पड़ेगा, और फिर आयात के अंदर आकर कलिमात के अंदर भी आकर वहां पे थोड़ा सा उसको वक्फा करवा के ठहरा के कि इस तरह जो है आप पूरी तवज्जो देकर ऐसे जो है वो पढ़े, तब जो है वो आसा सा ठीक हो जाएगा। हम उसको बताए जा रहे होते हैं मतलब यूरोफिन हारिन यूरोफिन हारिन यूरोफिन हारिन ऐसे पढ़ाए जा रहे होते हैं, लेकिन उसको तरीका नहीं बता रहे होते। जब उसको तरीका बताया जाएगा ना तो फिर उसके मुताबिक जो है ना उसको करने की, आप गाड़ी चलाने वाले आप कहें सीधी रखो सीधी रखो, अब इसको जो है वो ऐसे मोड़ो, अब उसको बताना है कि भाई सीधी कैसे रखनी है, स्टेयरिंग को कैसे आपने संभालना है, ब्रेक लगानी है आराम से लगानी है जी, ब्रेक आराम से लगानी है, नहीं उसको बताना पड़ेगा कि ब्रेक ऐसे आराम से लगानी है। सिर्फ बताने से नहीं, प्रैक्टिकल करके उसको कुछ तरीकाकार बताना होगा, तब जाकर जो है ना ये फायदा होता है। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। जी अगर कोई और क्वेश्चन सवाल नहीं है फिर मुझे इजाज़त दीजिए। जी, अगर किसी का सवाल है तो मोहतरम कारी साहब से पूछ लें आप, और अगर नहीं है तो फिर हम इस सेशन को मुकम्मल करते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह कोई सवाल नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तरतीब जो बताई गई पढ़ाने की वो बहुत अच्छी थी। जी माशाल्लाह बहुत फ़ायदा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह इन सब बातों से, और बहुत ज़्यादा ऐसे लग रहा था कि ये सारे हमारे मसाइल हैं और ये सब एक जगह ना हमें बताए जा रहे हैं। बहुत ही अच्छा है माशाल्लाह, हमें ये फ़ायदा दिया इस वर्कशॉप ने। अल्लाह ताला हमें पर अमल करने की तौफीक दे और इस कुरान की तालीम को हमारे लिए सदका जारिया बनाए और हमारे लिए जो है ज़रिया निजात बनाए, और हमें अल्लाह ताला जो है कुरान की तालीम ज़्यादा से ज़्यादा देने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हमारा